Hello all, welcome back to the BioRox channel. In this video today, I'm going to introduce you with the conducting airways of our respiratory system. Okay, so I'll be introducing you with the larynx, the trachea, as well as your lungs and the chest wall in this video. So without any delay, I'll be sharing my screen with you all and I'll be starting up the topic today. Okay, children. So yeah, so we are going to learn today about the breathing. Okay, that is the ventilation. Okay, ventilation, which is going to speak about in and out of air. Okay, through through the airways into the lungs. So this will be the content that I'm going to explain you in this video today. So we'll be learning about the breathing, which is going to enable the passage of the air in and out of the lungs through the airways. So the most important airway that is going to bring about the air into the lungs is going to be the structure which is being called as a trachea. Okay, children. So trachea is one of the major conducting airways into our what you call is the lungs. So this is enabling the what you call is air to get in as well as out of the lungs. So if you look at this particular trachea is going to be made up of, for instance, if this is going to be my trachea, it's made up of the cartilaginous rings, and these cartilaginous rings are incomplete. What is that? I'll just let you know. So these are the C-shaped cartilaginous rings which are going to actually make or give that pattern to the trachea which keeps it open. What are these structures that you're able to see on the trachea are the C-shaped cartilaginous rings. These are the C-shaped cartilaginous rings. And how are these cartilaginous rings? I told you these are incomplete. Okay, incomplete. That's the reason we are specifying them to be C-shaped. Okay, not a O shape, C shape. So it's nothing but if you look at a cartilage, that is, if you look at the cartilage in the this particular trachea, this is the ring of the cartilage, but this is not complete. Okay, and you can see here that this cartilage is going to be here incomplete, and it's been completed by a muscle which is being called as a trachealis muscle. This is being called as a trachealis muscle. Okay, so this is the cartilaginous ring, but it is incomplete, and the rim is completed by the trachealis muscle. Okay, so if you look at this particular trachealis muscle, children, for instance, I'm drawing the C-shaped cartilaginous ring over here once again. This is my C-shaped cartilaginous ring, and the rim of this is being completed by the trachealis muscle. So this will be your anterior view. Okay, so this is towards your ventral surface and this is towards your dorsal surface. So behind your C-shaped cartilaginous rings of the trachea, there is a huge long muscular pipe which is going to run at the posterior or at the back of this particular trachea. There is a pipe running, and this pipe is going to be none other than this pipe which is going to run over here is going to be esophagus, or what we term as our food pipe. Okay, this is going to be esophagus or the food pipe. So where is a food pipe running is just behind your trachea. So this is your trachea, C-shaped cartilaginous ring, and just behind that is going to be the running of this particular muscular pipe which is being called as a food pipe. See, now you will get your reason for what reason your trachea cartilaginous rings are incomplete. Imagine if it would be the complete the ring of cartilage, then what happens is the food which is traveling or passing through the esophagus might have bumped. So to prevent the bumping of the food inside your pipe, the trachea is made up of C-shaped
cartilaginous ring. C shape is nothing but incomplete cartilaginous ring. Okay, this is important to remember. So we call trachea as windpipe. Okay, as this is the most important conducting airway, we are regarding trachea as windpipe. And this trachea is made up of what? It is made up of incomplete C-shaped cartilaginous rings. And just behind this particular trachea, who is running? Esophagus is going to run. Okay, and remember, for instance, if I'm talking about the trachea, if this is my trachea, I told you that they are being made up of a C-shaped cartilaginous rings here, and these are the rings which are making the trachea get open to allow the flow of the air in and out of the lungs. Just above this particular trachea, there is a structure which is being called as larynx, the sound box or the voice box, larynx. Larynx is made up of, see, I need to speak about this now. This is important regarding your examination point of view. Larynx is made up of 9 cartilages, okay? 9 cartilages. And these 9 cartilages are the thing that I have drawn here just above the trachea. The broader structure is being called as a thyroid cartilage. This is called as thyroid cartilage. Okay, actually thyroid cartilage is going to be a leaf blade like broad structure, and this is going to have some what I call is a structure like this is going to be elevated structure at your throat, and we call this particular elevation in the lamina. These are called as a lamina of the thyroid. Lamina is nothing but the expanded part. These laminas are going to join together and form an elevated structure, and this elevated structure is going to be more visible in the males. So I'm saying you that the lamina of these cartilage, that is thyroid cartilage, is going to give you an elevation. Okay, the junction of the two laminas, like this is one of the lamina, this is one of the lamina of the thyroid cartilage. This is going to give you a projection like this, and this elevation is going to be the most visible in males. It's visible in males, and we call this thyroid cartilage as Adam's apple also. This has been regarded as Adam's apple. Okay, visible in males. Okay, this one. And the second one is going to be just below here, thyroid cartilage. There is a complete ring of another cartilage. This complete ring of another cartilage which is found here is going to be called as a cricoid cartilage. It's a cricoid cartilage. Remember children, just beneath के क्राइकोइड के कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो ट्रैकिया है यहाँ पर इनकम्प्लीट रिंग्स है, लेकिन क्राइकोइड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ अ कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज. इट्स ए कंप्लीट रिंग. सो ये है आपका क्राइकोइड कार्टिलेज. याद रखना कि आपके थायराइड कार्टिलेज और क्राइकोइड कार्टिलेज के बीच में देयर इज अ लिगामेंट हियर. ओके, यहाँ पर एक लिगामेंट देखा जाता है. ये है आपका थायराइड कार्टिलेज और ये है आपका क्राइकोइड कार्टिलेज. इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये है आपका क्राइकोथायरॉइड लिगामेंट. ओके, so just let me erase this. The spelling has gone wrong, children. Give me a moment. So we are talking about the cricoid ligament here. So this is the ligament, and this ligament is connecting the thyroid as well as a cricoid. So we call it as a cricothyroid ligament. क्लिनिकली ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी को एस्फिक्सिएट हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, तो यूजुअली ये क्राइकोथायरॉइड लिगामेंट में ही आपको पंक्चर किया जाता है ताकि आपको इमरजेंसी में ये एयर कंडक्टिंग में हेल्प करता है. सो क्राइकोथायरॉइड लिगामेंट को ये जो पंक्चर करना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राइकोथायरॉइडोटमी. ओके, इसमें ये क्राइकोथायरॉइड लिगामेंट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इमरजेंसी एयरवे के जैसा काम करता है. आप मूवीज में भी देख सकते हैं कि दे मेक
व्हाट यू कॉल इज, जब आप एस्फिक्सिएट हो रहे हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीदिंग में, so it's going to be here, they're going to make out a puncture, okay, they're going to puncture out, so that is going to be for an emergency airway के लिए किया जाता है. So first वाला है आपका thyroid cartilage, second है complete ring structure which is cricoid cartilage, और थर्ड वाला होता है जस्ट इसके ऊपर ही you're going to have a leaf like structure like this, and that is going to be the epiglottis. Okay, so epiglottis is also cartilage of your larynx. Next, आपके पीछे तरफ, इन structures के पीछे तरफ, means when you come towards the dorsal surface of this particular what you call is larynx, we can see some other cartilages which are being called as arytenoid cartilage. Okay, and the next one that we can see is going to be horn-like structures which are being called as corniculate cartilage. And the next one we are going to have is going to be the cuneiform cartilage. So these are the ones that you can see. But ये मैंने 9 cartilages बोला है क्योंकि आपके thyroid, cricoid और epiglottis जो है ये unpaired structures है. So ये single structures है, तो हो गए 3. और आपके एरिटेनॉइड और कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हो गए, तो हो गए टोटल कितने, 6 हो गए हैं, और ये हो गए हैं कितने, 3 हो गए हैं, तो सब मिला के हो जाते हैं कितना, 9 कार्टिलेजेस रहते हैं, किसमें, आपके लैरिंग्स में. लैरिंग्स कहाँ पर है, आपके ट्रैकिया के ऊपर. ये एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा उसको समझने में. बट जस्ट रिमेम्बर दैट हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका ट्रैकिया. ट्रैकिया के ऊपर जो स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी द लैरिंग्स. तो हमने इनके बारे में बात किया है, लैरिंग्स के बारे में. वी आर स्पीकिंग अबाउट द ट्रैकिया आल्सो. ओके, तो ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है. लैरिंग्स क्या है, आपका वॉइस बॉक्स है चिल्ड्रन. सो रिमेम्बर दैट आपका ये जो स्ट्रक्चर्स है ये किस में काम कर रहे हैं, इज स्पेशली आपका ट्रैकिया जो है द मेजर कंडक्टिंग एयरवे बनता है. ओके, कंडक्टिंग का मतलब फ्लो करवाने में एयर का इन एंड आउट. सो दिस इज योर मेजर कंडक्टिंग एयरवे दैट वी कैन सी हियर, airway that we can see here. Okay, so now coming on to आपका ये जो trachea है, trachea is going to divide into 2 branches. Okay, to give rise to a new structure, and this new structure is none other than the bronchus. ये bronchus कैसा है देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ही अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाता है. सो आपका ये जो राइट वाला है थोड़ा सा वो डाउन ऐसा स्ट्रेट है, लेकिन आपका लेफ्ट वाला ब्रोंकस जो है थोड़ा सा इट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द अपर वे. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर. ये शेप में देखा जाता है आपका ब्रोंकस. सो ये हुआ आपका कौन सा साइड, ये हुआ है आपका राइट साइड, ये हुआ है आपका लेफ्ट साइड. आपका राइट साइड का जो है एग्जैक्टली इट इज लुकिंग डाउन. ओके, लेकिन आपका लेफ्ट साइड जो है इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट टुवर्ड्स अपर एंगल. ओके, सो ये वाला है, ये याद रखिए कि जब कोई भी बच्चा फॉर इंस्टेंस लाइक इनहेल कर लेता है छोटा सा पीस ऑफ पीनट हो या इरेजर्स हो, तो वो सीधा कहाँ पर जाता है, इज गोइंग टू बी डायरेक्टली इनटू द राइट साइड में चला जाता है. तो आपके डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए इजी हो जाता है जब कोई इनहेल कर लेता है तो इट इज गोइंग टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द राइट साइड, बिकॉज right side is directly towards down, whereas this is little bit bifurcated towards another angle. तो मुश्किल है यहाँ पर, तो it's going to be dropped down over here only. Okay, this is important to remember. तो याद रखिए आपके ट्रैकिया से जो 2 what you call is structures आए हैं उनका नाम होता है, हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस. इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस. ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये अभी डिवाइड होता है ऐसा, आपके राइट साइड का लंग जो है 3 लोब्स में है, तो यहाँ पर ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो दे रहा है 3 डिविजन्स. यहाँ पर ये हर एक डिवीजन एक एक लोब में जाता है आपका लंग का. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभी इसको बोलते हैं हम लोग लोबार ब्रोंकस बोलते हैं.
ओके, सो एक एक ब्रोंकस एक एक लोब में जाएगा। आपके राइट साइड की लंग में कितने लोब्स है? 3 लोब्स है, तो ईच ब्रोंकस विल गो इनटू व्हाट यू कॉल एज अ लोब। वैसे ही आपके लेफ्ट साइड में आपके लंग में है 2 लोब्स रहते हैं। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस एंड these 2 branches will be called as what? Lobar bronchus। ये किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है। तो आप देखिए आपके डिवीजन कैसा जा रहा है। और नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पर, नाउ दीज आर गोइंग टू डिवाइड फर्दर इनटू द ब्रांचेस लाइक दिस। अभी ये भी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। अभी ये ब्रांचेस जो लोबार ब्रोंकस से आता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? सेगमेंटल ब्रोंकस बोलते हैं। इनको बोलेंगे हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकस। ये सेगमेंटल ब्रोंकस और फर्दर डिवाइड हो जाता है, और ये जो फर्दर डिवीजन होता है ना, वो कितना टाइम्स होता है मालूम है? 20 to 25 times, it may be 20 to 25 times it is going to be branched। कौन ब्रांच हो रहा है? ये आपके सेगमेंटल ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस जो डिवाइड हो रहा है मल्टीपल थिन थिन ब्रोंकस में, इनको हम लोग अभी बोलते हैं क्या? इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर चिल्ड्रन। सो मैं बता रही हूँ कि आपके ट्रैकिया के ऊपर का स्ट्रक्चर नाम हो गया है लैरिंग्स, और आपका ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ है मेन टू ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। और ये दो ब्रांचेस का नाम होता है क्या? इट इज गोइंग टू बी द वंस व्हिच आर बीइंग कॉल्ड एज द व्हाट यू कॉल इज we are calling them as a primary bronchus. We are going to call them as a primary bronchus, and these primary bronchus will divide to give you the lobar bronchus। okay, ये lobar bronchus राइट साइड में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। लेफ्ट साइड में कितने रहेंगे? ये 2 रहेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लोब्स। कितने लोब्स है उसके हिसाब से ये बना है। और आपका ये जो लोबार ब्रोंकस है, अभी ये डिवाइड हो जाता है कैसा? इट डिवाइड्स इनटू द सेगमेंटल ब्रोंकस। आपका सेगमेंटल ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? आपका फर्दर डिवाइड होके प्रोड्यूस कर रहा है क्या? फाइन ब्रांचेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। यहाँ पर एक स्पेशल पैटर्न मेंटेन किया जाता है। ये पैटर्न ऐसा है कि आपका जो, फॉर इंस्टेंस ये 2 हुए हैं, ओके, और ये 2 बने हैं आपके ये ब्रांचेस। क्या है? आपके लोब्स। लोब्स के बाद से जो आपके सेगमेंटल बने हैं, सेगमेंटल से भी फिर से यही पैटर्न आ रहा है, 2 2 2, और यहाँ पर फिर भी 2 2 2। ये क्या होता है? इस आपका ये जो ब्रोंकियोल्स है, दैट इज दे आर मिमिकिंग द ब्रांचिंग ऑफ द अर्लियर ब्रोंकाई। ओके, ये किसको इमिटेट करेगा, मिमिक करेगा? इसको इमिटेट करेगा। It's nothing but the branches are going to be finely branched out and they're going to give rise to the bronchioles। इतना branches कैसे दिखते हैं? इस they are going to look like, for example, ये आपका दिखेगा, आपका एक main tree trunk के जैसा दिखेगा। कौन? आपका ट्रैकिया जो है। और ये पूरा ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स कैसे दिखते हैं? दे विल बी लुकिंग लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मैं आपको इसका इमेज बताती हूँ बाद में एक स्लाइड में। okay, just remember children that we are talking about the larynx structure, which is a voice box। ओके, जिसके नीचे है उनका एक कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिकोइड, और उसके नीचे आ रहा है हमारा ट्रैकिया, और ट्रैकिया में है हमारे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कंडक्टिंग एयरवे है, जो दे रहा है हमारे प्राइमरी ब्रोंकस को। प्राइमरी ब्रोंकस हमारा दे रहा है लोबार ब्रोंकस, और लोबार ब्रोंकस हमारा दे रहा है क्या? सेगमेंटल ब्रोंकस। ओके, सेगमेंटल ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है and it produces minute branches which are being called as bronchiolar structures। So this is the one। and यहाँ पर जो आप देखते हो, for example, ये this is my trachea। so if this is going to be my trachea is giving rise to, now let me take a fresh page in it। so if this is going to be my trachea, ये मेरा trachea हो गया। Trachea is giving rise to the right side as well as the left side bronchus।
यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ये जो लंग रहेगा, यहाँ पर हमारे लंग्स जो है, as I told you, this is going to give rise to the three lobar. So 1, 2 and 3. So ये होगा आपका first lobe, ये होगा आपका second lobe, ये होगा आपका third lobe. और अगर इस तरफ का भी हम लोग देखेंगे तो ये कैसा है, is going to be आपका ये है. So हमने बोला है यहाँ पर it's going to be 2, right? So this is going to be one lobe and this is going to be another lobe. So this is one lobe and this is going to be the second lobe. हमारा लोब्स रहने का एडवांटेज ये है कि अगर जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका जो इन्फेक्शन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एक लोब के अंदर ही. जैसे कि आप निमोनिया देखते हो, निमोनिया इज नॉट स्प्रेड टू द होल लंग्स, इट इज जस्ट कन्फाइंड टू वन ऑफ द लोब. ओके, अगर वो लोब में ही है तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू एक्चुअली ट्रीट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. सो रिमेम्बर, कभी कभी इन्फेक्शन ब्रोंकियोल्स में भी होता है, तो ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं. ओके, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं. इसको हमने अभी देखा है कि हमारे लैरिंग्स देखा, ट्रैकिया देखा, ब्रोंकियोल स्ट्रक्चर्स देखा, जो हमारे ये है हमारे लंग्स है. जस्ट मुझे आज आपको चेस्ट वॉल या थोरैसिक वॉल को इंट्रोड्यूस करना है. सो थोरैसिक वॉल और द चेस्ट वॉल. आप देखिए आपका चेस्ट वॉल या थोरैसिक वॉल कैसे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ रिब केज. ओके, सो आपके ये जो रिब्स है, कितने रिब्स रहेंगे, 12 रिब्स रहेंगे. ओके, सो आपके ये जो पहले 10 रिब्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 9 वी हैव गॉट. सो आपके ये है 10 रिब्स. तो आपके रिब्स में क्या होता है, रिब्स आर हैविंग, इन बिटवीन द रिब्स वी आर गोइंग टू हैव इज आर द मसल. then this muscle is being called as a intercostal muscles we are going to call. So देखिए बच्चों, यहाँ पर ये होगा जो बाहर का है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये होगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. देखिए इसका नाम है कॉस्टल. कॉस्टल का मतलब होता है विच इज गोइंग टू रेफर टू द रिब्स. ये कहां पर है, इन बिटवीन है ना. सो इन बिटवीन है तो इनको क्या बोलेंगे, इंटरकॉस्टल. कितने हैं इंटरकॉस्टल मसल्स हमारे पास टाइप्स, जो बाहर है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो इंटरनली है उनको बोलेंगे हम लोग इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. ओके, तो आपके रिब्स है, आपके कॉस्टल मसल्स है जो बनाते हैं आपके थोरैसिक वॉल या चेस्ट वॉल. ये चेस्ट वॉल या थोरैसिक वॉल का मूवमेंट के वजह से आपका 25% ऑफ ब्रीदिंग एफर्ट्स लगाए जाते हैं. द ब्रीदिंग इज गोइंग टू बी, ब्रीदिंग क्या है आपका, इनेबलिंग द एयर इन एंड आउट. सो आपके थोरैसिक वॉल के मूवमेंट्स के वजह से आपका 25% ब्रीदिंग एफिशिएंट बनता है. और आपके रिब्स, आपके लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड मसल है यहाँ पर, and this dome shaped muscle which is being present is connected with this, and this is going to be the muscle which is being called as diaphragm. We are going to call diaphragm. ये diaphragm जो है ऊपर का वो thoracic cavity बना रहा है, is differentiating, and नीचे का आपके एब्डोमिनल कैविटी बन रहा है. ओके, आपकी ये जो डायाफ्राम का मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, उसकी वजह से आपका 75% ऑफ ब्रीदिंग एफिशिएंट बन जाता है. ओके, सो आपकी ब्रीदिंग में डायाफ्राम इज कंट्रीब्यूटिंग 75% and your thoracic wall is going to contribute 25% of that. Okay, this is important to remember. So I introduced you with the larynx, the examination point of view. आपके cartilages जो याद रखना है आपको. नेक्स्ट वाला होता है आपके ब्रोंकियोल ट्री स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद हमने देखा है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में, और रिब केज which is forming the thoracic wall, children. Now just let me show you those slides which will give you a very clear cut idea regarding this particular thing that we have learned today. Okay, so let me share my screen with you all. So the first thing is I was talking about the cartilages of the larynx. So this will be the image that will be helping you. So ये है आपके leaf-like structure जो epiglottis है. ये है आपका thyroid cartilage.
जिनको मैंने बोला ब्रॉड लैमिना है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और यहाँ पर एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो एडम्स एप्पल जैसा दिखता है, तो हम लोग थायराइड कार्टिलेज को ही बोलते हैं एडम्स एप्पल। और नेक्स्ट उसके नीचे है हमारे कंप्लीट विंग लाइक स्ट्रक्चर जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, यहाँ पर हमारा लिगामेंट रहेगा क्राइकोथायरॉइड, और ये नीचे का स्ट्रक्चर जो है ये है हमारा ट्रैकिया जो सी शेप इनकम्प्लीट रिंग से बना है। ओके, और जैसे आप पीछे के व्यू में देखते हो तो यू कैन सी दैट देयर आर सम स्ट्रक्चर्स हियर एंड दैट आपकी क्रिकॉइड कार्टिलेज जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके एंटीरियर व्यू है, ये आपके पोस्टीरियर व्यू है, उसके ऊपर यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स, these are being called as arytenoid cartilage। एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम बोलते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। और आपके यहाँ पर जो आप सिंगल स्ट्रक्चर, ये पेयर स्ट्रक्चर इस तरफ और राइट साइड भी रहेगा, सो ये स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज जो है उसको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये बने हैं आपके एपिग्लॉटिस और आपके थायराइड कार्टिलेज, ये बना है क्रेकॉइड कार्टिलेज, क्राइकॉइड के पीछे तरफ ही ऊपर है आपके एरिटिनॉइड कार्टिलेज, और ये है आपके कॉर्निक्यूलेट जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स है, और आपके ये अदर पेड स्ट्रक्चर्स है आपके क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये है आपका लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, और एक्सलेशन के दौरान ही आप वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई टोल्ड यू दैट ट्रैकिया जो है इनकम्प्लीट रिंग से बना है, तो ये है आपके इनकम्प्लीट हाइलाइन कार्टिलेज जो बना है सी शेप्ड वाला। मैंने बताया है उनके पोस्टीरियर साइड में कार्टिलेज कंप्लीट नहीं है, फिर भी उनका रिम कौन कंप्लीट कर रहा है, ट्रैकियालिस मसल कंप्लीट कर रहा है। ओके, और आप देख सकते हो जस्ट आपके इनके पीछे तरफ पोस्टीरियर साइड में आपका फूड पाइप रन करता है, दिस इज योर ईसोफेगस। सो आपके ईसोफेगस में जो फूड ट्रैवल कर रहा है वो बम्प होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मसल है, so there will be smooth traveling of the food during the peristaltic movements। Okay, so now coming on to the bronchus tree children, as I have introduced you with the bronchus, मैंने बताया है कि आपका ट्रैकिया ब्रांच करता है प्राइमरी ब्रोंकस में जो लेफ्ट और राइट साइड में है। ओके, और बाद में होता है आपका लोबार ब्रोंकाई, फिर लोबार से आता है आपके सेगमेंटल ब्रोंकाई, और सेगमेंटल ब्रोंकाई ही देता है आपके ब्रोंकियोल्स को जो आपके एल्वियोलाई तक रीच करते हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं यहाँ पर, आप प्राइमरी ब्रोंकस है, और लोबार ब्रोंकस को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और आपके सेगमेंटल ब्रोंकाई को हम बोलते हैं टेरिशियरी ब्रोंकाई। आपके ये सब चीजें, आपके ट्रैकिया, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशियरी जो है वो कंडक्टिंग एयरवेज है जैसे मैंने बताया है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट वाला एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो चलता है कहाँ पर चलेगा, आपके ब्रोंकियोल्स, कहाँ पर आपके सबसे फाइनेस्ट ब्रांचेस जो ब्रोंकियोल्स है यहाँ पर, or as well as you can see that in these particular alveoli, so इनको हम लोग रिगार्ड करते हैं एक्सचेंज पार्ट में। ओके, ब्रोंकियोल्स को हम लोग लेते हैं किसमें, एक्सचेंज पार्ट में एल्वियोलाई के साथ, और दूसरे सब ब्रोंकस आते हैं आपके कंडक्टिंग एयरवेज में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वाला मैं बात कर रही थी आपके रिब केज के बारे में जो बनता है आपका थोरैसिक वॉल या चेस्ट वॉल बनता है। सो ये है आपके सब रिब्स जो 10 रिब्स है, लेकिन 11th एंड 12th रिब जो है वो आगे आते नहीं है आपके कॉलर, दैट इज आपके सॉरी चेस्ट बोन के साथ फ्यूज होने में। आपकी ये चेस्ट बोन जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम। ओके, सो ये स्टर्नम जो है यू कैन सी दैट ये आपके टाई लाइक स्ट्रक्चर के जैसा, टाई जो बांधते हो ऐसा दिखता है। ये वाला जो है ब्रॉड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मैनुब्रियम, मैनुब्रियम। और ये है आपका स्टर्नम का बॉडी। ओके, स्टर्नम का बॉडी है ये वाला, और ये बोला जाता है जिफॉइड प्रोसेस, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ जिफॉइड प्रोसेस। सो आप ये याद रखिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मैनुब्रियम, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर जिफॉइड प्रोसेस। आपके चेस्ट बोन या स्टर्नम के साथ रिबकेट अटैच्ड है, लेकिन क्या डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर जो आप देखते हो वो है आपका कार्टिलेज। सो आपके रिब्स जो
पीछे से आ रहे हैं, they are joining up with your chest bone, but with the fusion of your cartilage. And this cartilage is none other than, ये कहाँ पर है, रिब्स के साथ है ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। ओके, सो ये है आपका कॉस्टल कार्टिलेज जो फ्यूज कर रहा है आपके रिब्स को किसके साथ, आपके चेस्ट बोन या स्टर्नम के साथ कर रहा है। ओके, आपके 11th एंड 12th रिब बोन्स जो है वो आगे नहीं आते हैं स्टर्नम के साथ फिक्स होने में, सो वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ फॉल्स रिब्स, यहाँ पर दिया है आप देख सकते हो, या उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स भी बोले जाते हैं उनको। ओके, सो नाउ यू कैन सी, आई विल शो यू द फ्लोटिंग रिब्स चिल्ड्रन which are not coming forward. So ये है आपके incomplete वाले floating ribs, आपके 11th and 12th वाले. So these are the pairs, the 12 pairs. सब आए हैं यहाँ पर fuse होने में, लेकिन ये दो आपके आते नहीं है. Okay, children. So remember that in this video today, what we are learning, or what we have learned, is just about the चेस्ट वॉल, थोरासिक वॉल एंड द कंडक्टिंग एयरवेज के बारे में बात की। कंडक्टिंग एयरवेज में कौन आता है, आपका ट्रैकिया आता है, आपका ब्रोंकस आता है। ओके, उसके साथ साथ हमने ट्रैकिया के ऊपर का स्ट्रक्चर जो देखा है, जो हमारे वॉइस बॉक्स है, वो होता है हमारा लैरिंग्स एंड उनके कार्टिलेज। ओके, इन द फोर्थ कमिंग वीडियो चिल्ड्रन, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विद द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपके नोज एंड नेसल कैविटीज, आपके नासोफैरिंग्स है, उसके बारे में देखेंगे, और लंग के बारे में, और डायफ्राम के बारे में, आपके ब्रीदिंग, इनहलेशन, एक्सहेलेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट forthcoming videos. I hope you all have understood this video, children. If you have liked this video, please hit the like button and subscribe my channel and share this channel to the many other people. Okay, thank you all. Thank you.